ایک بچہ مر گیا اور جب بچہ مرا تو اسی ماں تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی. محلے کے ایک ہوشیار عورت آئی, آنے کے بعد کہنے لگی یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ کھیل کھیلتا ہے, دنیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتی ہے, اس کا کھیل بڑا نرالا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بچوں کو سلا دیتا ہے اور سلانے کے بعد پردہ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے قم بإذن اللہ, کھڑا ہو جا, اللہ کے حکم سے بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. چلو آج آزما لیا جائے, اس مردے بچے کو بھی انہی بچوں میں سلا دیا جائے. اللہ اکبر. مردے بچے کو لپیٹ کر لائے. غوث اعظم کھیل کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے آپ کہہ رہے ہیں قم بإذن اللہ. سارے لوگوں کی نظر لگی ہے, جو زندہ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا, جو مردہ ہے اس میں کمال کہاں سے آئے گا. لیکن غوث اعظم کہتے کہتے اس مردے بچے کے پاس گئے. آپ نے کہا قم بإذن اللہ. جیسے وہ بچے کھڑے ہوئے ویسے مرا ہوا بچہ بھی کھڑا ہو گیا. بچہ کھڑا ہوا, یہ پورے شہر میں آگ کی جیسی خبر پہنچ گئی ہے. آج ایک خانقاہ کے پوتے نے آج کمال کر دیا ہے کہ ننھی سی عمر میں ایک بچے کو زندہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. اڑتے اڑتے خبر دادا کے پاس پہنچی, اور جب یہ خبر دادا جان کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک چھڑی لی. کہا کہاں ہے عبد القادر جیلانی, کہاں ہے عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں پوتا آگے بھاگ رہا ہے, پیچھے سے دادا چھڑی لے کر جا رہے ہیں. کہا عبد القادر جیلانی رک جا, عبد القادر جیلانی رک جا, تیرے بڑے دشمن ہیں, لوگ حملہ کر دیں گے. لیکن آگے آگے بھاگ رہے ہیں. اور جب سیدنا عبد القادر جیلانی قبرستان کے پاس گئے تو آپ نے مردوں سے کہا مردوں میرا دادا مارنے کے لیے آ رہا ہے, سارے کے سارے مردے اٹھو اور میرے ساتھ چلنا شروع کر دو. پورا قبرستان زندہ ہو گیا. آگے آگے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھاگ رہے ہیں. یہاں پورے مردہ زندہ ہو گئے. تو دادا بھی نے چھڑی رکھ دی. کہا ابھی تو ایک زندہ کیا تھا, اب تو ہزاروں کو زندہ کر دیا ہے. تو ایک کو زندہ کرے. دنیا میں اس کو غوث کہا جاتا ہے, اور ایک اشارے میں ہزاروں کو زندہ کرتے اسی کو تو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور سنو, اس عقیدے سے مجمع سے جانا کہ غوث اعظم کی فاتح مناتے تھے, مناتے رہیں گے. ان کے لیے قربانی دیتے تھے, دیتے رہیں گے. مزار پر چادر چڑھاتے تھے, چڑھاتے رہیں گے. بات یاد آ گئی تو کہہ دوں, ایک جگہ میں علاج کے لیے گیا, اور جب میں علاج کرنے کے لیے بات چیت کرا, میں نے پوری بیگ کھولا. یہ جلانے کے پلیتے, یہ پھلانے کے پلیتے, یہ اتارنے کے پلیتے, یہ ساری بات کر ہی رہا تھا میں. جس کو میں نے دینا تھا دے دیا. اندر سے ایک بوڑھی ماں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی حضرت آپ نے علاج تو بہت اچھا کیا ہے, اور ہم جانتے ہیں آپ کا علاج بڑا پاور والا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے پاور والا ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, جس شہر سے آئے ہیں اس شہر کے بادشاہ کمبل پوش کا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی طاقت لے کر آپ چلتے ہیں, اس کا پاور لے کر چلتے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن ایک بات تو بتا دو, آپ کی منہ سے یہ جملہ نکل گیا ہے کہ یہ پلیتے کام نہیں کریں گے, جلانے والے الگ, اتارنے والے الگ, پلانے والے الگ. میں نے کہا موقع لگا تو ہوا میں اڑانے والے بھی پلیتے بھیج دوں گا, لیکن کریے تو صحیح. کہا حضرت آپ کچھ بھی کر لیجئے, لیکن یہاں برکت نہیں آ سکتی, یہاں کاروبار اچھا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا سنیے, کاروبار جس سے اچھا ہوتا تھا وہ تو ہمارے گھر سے چلا گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ سنیے, یہ سب ہو گئے, جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں. کہا کچھ ہوتے دینی اجتماع ہوا کرتے ہیں, جا جا کے یہ اتنے بڑے بددین ہو گئے ہیں, یہ اتنے بڑے بد مذہب ہو گئے, ہمارے بچوں کو ہوش نہیں ہے. ارے کس کا پروگرام ہے یہ تو دیکھ لیا کرو, گاڑیوں پر اسٹیکر لگا کے گھوم رہے ہو, اپنے گاڑیوں پر اسٹیکر لگا کر گھومتے ہو. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کسی بد مذہب کا اسٹیکر ہے یا کسی تمہارے بارے مذہب کھانے کا اسٹیکر ہے؟ تمہیں ابھی پتا بھی نہ چلا کہ کس کا پروگرام ہے, کیسا پروگرام ہے. جانتے ہو وہ پروگرام کس لیے ہوا تھا؟ اچھی بات آ گئی اس لیے بیان کر رہا ہوں. وہاں پروگرام اس لیے رکھا گیا, 3 دن کا اجتماع رکھا گیا تھا امراوتی میں. آپ کو یہ معلوم ہے یہ پروگرام کس لیے رکھا گیا؟ وہاں ایک بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے, کہنے کی ضرورت پڑی اس لیے کہہ رہا ہوں. وہاں مدرسہ چلتا ہے, اور اس مدرسے کے اندر جانتے ہیں جو سب سے بڑا مفتی تھا, 13 سے 12 سال کی بچی کے ساتھ آج پورا ہندوستان ہر جگہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. جو بھی جہاں ہو رہا ہے, مجھ سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والے ہو, مجھ سے زیادہ اخبار پڑھنے والے ہو, لیکن آئیے میں آپ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں جو 8 دن کے لیے تمہیں چلا گاہ میں لے کر جاتے ہیں, مگر ان کا پردہ ہٹا کے ان کی حقیقت تو ذرا دیکھو, ان کی شکل تو دیکھو. چہرے پر داڑھی بھی ہے, سر پر ٹوپی بھی ہے, کپڑے اتنے اچھے ہیں کہ برے لوگ دیکھ کے ان کو شرما جاتے ہیں, مگر رات کے اندھیرے میں یہ اتنے کالے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر انہیں شرما جایا کرتا ہے.
के वहाँ के मुफ्ती ने एक ऐसा काम किया, खुदा की कसम दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। उसके लिए 3 दिन का इज्तिमा रख के तुमने उसके गुनाहों को धुलने के लिए इज्तिमा रखा था। अब सुनो, मस्जिद में दुआ से बड़ा परहेज है। इमाम और फेरने के बाद इमाम साहब तो हाथ उठा रहे हैं दुआ के लिए और वहां से भाग जाएंगे। अरे देख लो तो दरगाह की मस्जिद में देख लो, मैमन मस्जिद में देखो, जिस मस्जिद में जाओ या कहीं और चले जाओ, जो इमाम ने सलाम फेरा वो टंगा पैजामा उठा और भागा। ये देर नहीं लगती मस्जिद छोड़ के जाते। एक दिन पकड़ कर पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कहा हमें सब चलता है, दुआ नहीं चलती है। फिर ये तीसरे दिन दुआ का ऐलान क्यों हो रहा है? चलो आज दुआ के लिए आखिरी दिन है, चलो आज दुआ के लिए आखिरी दिन है, चलो आज दुआ के लिए आखिरी दिन है। फैसला हो गया, हम दुआ करते हैं खुदा वालों की बारगाह में जाकर और तुम दुआ करते हो दुनिया वालों से मांगने के लिए। आज तुम भीख मांग रहे हो दुनिया वालों से नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी दुनिया वालों से नहीं मांगा है, हमने अल्लाह वालों से मांगा है। और बगदाद जैसी राजधानी पर राज करने वाले शहंशाह का दामन जब हमें मिल गया है तो दुनियादारों के दामन की हमें जरूरत नहीं है। मस्जिद में दुआ से परहेज है, महफिलों में दुआ मांगते हो, ये आखिर दो रंगी चाल क्यों चलते हो? एक रंगी चाल चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो रज़्वी है, कादरी है जो रात के अंधेरे में बोलते हैं, उजाले में सीना ठोक कर बोलते हैं। उस बुढ़िया ने हमसे कहा था, हजरत सुनिए, मैं भूला नहीं हूँ, आप सोच रहे भूल गए होंगे। उस बुढ़िया ने कहा था हजरत इनको एक सितारा ताबीज दे दीजिए मगर बरकत नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए इन्होंने फातिहा कराना छोड़ दिया है, इन्होंने फातिहा कराना छोड़ दिया है। सुनिए, हमारा शौहर 1 रुपया लेकर आता था, उस वक्त हमारे घर में बरकत थी, इसलिए कि जुमरात को हमारे घर में फातिहा होती थी, जुमे को हमारे घर में फातिहा होती थी। हम अल्लाह वालों के नाम फातिहा देकर वसीला तलाश करके रहमत लाते थे। आज इन्होंने सब छोड़ दिया है तो इनको क्या मिलने वाला है? इसी अकीदे के साथ फातिहा कराते रहिए, इंशाअल्लाह तावीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फातिहा से मुनकिर होने की जरूरत नहीं है। फातिहा कराते रहो। और एक बात और सुनो, चादरें चढ़ाते हो लेकिन चादरों चढ़ाने का तरीका तो भी सीख लो। मैं तो बहुत ज्यादा बोला करता हूँ, आप सुनते रहते। एक बात मैं दे रहा हूँ, मैंने देखा है कि मज़ारों के सामने अभी जल्दी मैंने देखा है एक लड़का खड़ा हुआ था और मैं गया तो पहले वो आंखें बंद करके खड़ा था और आंखें बंद करने के बाद उसने अपने कान पकड़े, एक इधर से पकड़ा और एक इधर से पकड़ा। अभी आंखें बंद है, मैं उसके करीब में गया, मैंने देखे ये कह क्या रहा है तो कह रहा तोबा 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 तोबा। थोड़ी देर के बाद छोड़ा, हजरत ने अभी कहा है तो मैंने ये भी देखा कि एक कान में बाली भी लटक रही थी। मैंने कहा तोबा तोबा तोबा, इस इंसान को देखो। मैंने कहा उसके आँख खोलने के बाद कहा कहाँ आया है? कहने लगा हजरत यही की बात है अपने की, बाबा कमरपोश की बारगाह की। कहने लगा यही आया हूँ। मैंने कहा ये तो बता दे कहीं शरीयत में ये तोबा का तरीका मैंने नहीं पढ़ा है कि कान पकड़ के तोबा 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 तो 1000 गुनाह करके आया है, ये तोबा तोबा करने से कुछ नहीं होगा। कहने लगा हजरत कैसे होगा? मैंने कहा सुन, मज़ार में दाखिले का तरीका सीख, उलमा के पास आ जा, दुआ का तरीका सीख, उलमा के पास आ जा। दारुल उलूम इसलिए खोला गया है कि दारुल उलूम में पढ़ नहीं सकता है तो दारुल उलूम के स्टाफ से सीख जरूर सकता है। उलमा की बारगाह से दूर रहेगा तो ऐसे ही तौबा करता रहेगा। और थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों को देखा कि तमाचे मारते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ये थप्पड़ मारने की जरूरत क्या है? वैसे भी कब्र से लेकर हश्र तक तुम पर थप्पड़ मारने के लिए फरिश्ते तैनात किए गए हैं, इसलिए कि हर जगह ये चीजें नहीं चलती हैं। इस्लाम का तरीका सीखो, इजाजत लो, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ। आला हजरत लिखते हैं अल्लाह वाले की बारगाह की कद्र कितनी बड़ी हुआ करती है। आप इरशाद फरमाते हैं किसी की बारगाह में जाओ, हाथों को ऐसे बांधो जैसे कि नमाज में तालीमा बांधते हो और निगाहों को नीचा करो, दिल के अंदर ये नियत करो हुजूर आपकी बारगाह में आने की इजाजत है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद ये महसूस करो कि साहिबे मज़ार कम्बल पोश ने तुम्हें इजाजत दे दी है। उसके बाद दायां पैर दाखिल करो और कम से कम 2 या 3 फुट की दूरी पर खड़े रहकर फातिहा पढ़ो। यहाँ ऐसा हो गया है, मैंने बहुत सारों को तो ऐसा देखा है कि चादर उठाते उसके नीचे अपनी मुंडी घसोड़ देते हैं। कई लोगों को मैंने समझाया ये क्या कर रहा है, तेरा लब नापाक है, तेरा चेहरा गुनहगार है, तेरा हाथ गुनहगार है और तू इतनी पाक चादर को अपने ऊपर लपेटे फिर रहा है। अदाब का
मगर अदब से सब मिलता है, बेअदबी से कुछ नहीं मिलता है। वह ये सोच रहा है कि चादर सर पे पड़ गई, सारे गुनाह धुल गए। अभी आपने सुन लिया, गुनाह ऐसे नहीं धुलते हैं, गुनाह सच्ची तौबा से धुला करते हैं। खड़े रहकर फातिहा पढ़ो, और फातिहा पढ़ने के बाद बहुत सारे तो अभी भी ये कहते हैं, हजरत कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं फातिहा पढ़ने गया, मैं भी अभी तवाफ करके आया हूँ। मैंने कहा तवाफ खाने काबा के लिए है, किसी मजार के लिए तवाफ नहीं है। तवाफ करना गुनाह है। किसी भी मजार पर जाने के बाद अगर तवाफ सबको कहा जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा? जो खाने काबा है, तवाफ खाने काबा के लिए है। फातिहा पढ़ने का तरीका सीखो। आप लोग बैठे हुए मेरा मसला याद रखना, बहुत सारों को हमने देखा है, जाते हैं, जाने के बाद कोई कान पकड़ रहा है, कोई नाक पकड़ रहा है, कोई मुंडी खटोल रहा है। ये तरीके नहीं है, अदब से चलो, निगाह को नीचा करो, नीचा करने के बाद मजार में दाखिल हो जाओ, दाईं तरफ जाओ, फातिहा पढ़ो, और आप फातिहा पढ़ने के बाद सिर्फ एक राउंड मारकर पैताने आओ, और आने के बाद बोसा दे दो। नागपुर शरीफ में बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में एक मरतबा मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, और जब मैं फातिहा पढ़ने लगा, वहाँ का खातिम मुझसे बोलने लगा, जानते हैं आप खातिम वैसे भी सब जाहिल हुआ करते हैं, लोग उनको भी अल्लाह का वली समझ रहे हैं, नमाज पढ़ने का सलीका नहीं। मौलवियों को भी मारने में चूकता नहीं है, मौलाना को भी नीचे क्या पीठ पे मारा धम से। मैंने कहा ये क्या है जी? कहने लगे ये मजार से निस्बत है। मैंने कहा निस्बत इसको नहीं कहते हैं। अब बाबा ताजुद्दीन को दाढ़ी थी, तेरी दाढ़ी कहाँ चली गई है? बाबा ताजुद्दीन को नममा था, तेरी टोपी कहाँ चली गई है? बाबा ताजुद्दीन ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तू एक वक्त पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उधर नमाज हो रही है, इधर घुमा घुमा के नजराने लिए जा रहा है, इधर से ले नजराना, उधर से ले नजराना। मैं 12 फातिहा पढ़ने के लिए गया, हजरत सराहने फातिहा नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह अल्लाह माफ करे, जुमला गलत हो गया। मैं पैताने गया, मैंने बोसा दिया, तो कहने लगा हजरत सराहने आइए। मैंने कहा क्यों? कहा सराहने बोसा दीजिए। मैंने कहा सुन बेवकूफ, सराहने बोसा नहीं देने की जरूरत है, अमामा कितनी कद्र वाला होता है। अरे हम तो इनके कदमों के मोहताज हैं, कदम का मुताला मिल जाए तो हमारे लिए काफी है। तुझे अमामे भी कद्र न रही और कहने के लिए खादिम है, ये सरवरा है, ये फलाने है। अल्लाह सबको महफूज रखे। अभी आपने तकरीर सुनी, उलमा के करीब आओ, उलमा में तरीका बताएंगे। मस्जिद में दाखिले का तरीका क्या है, घर में दाखिले का तरीका क्या है, घर में आज कैसा मुसलमान दाखिल होता है बताऊं? सारे दिन भर खेत में मार्केट में कमाई करने के बाद आया, रात में जलाल चढ़ा हुआ था दिमाग के ऊपर, होश नहीं है। अब ये जलाल कहाँ उतरेगा? घर में बेचारी एक औरत है, उसके अलावा दूसरा कौन इसको मिलने वाला है? अगर बाहर ये जलाल उतारेगा तो बाहर मार होगी, अंदर घुसा चल पानी ला, ये कपड़ा फेंक, वो कपड़ा फेंक, ये सामान फेंक, सुन्नते रसूल ये है। घर में दाखिल हो जा तो सलाम कर ले, बीबी मुस्कुराकर जवाब दे देगी, तू भी सवाब का हकदार, वो भी सवाब की हकदार हो जाएगी। तरीके सीखो, मुसलमान बनने का सलीका सीखो। मुसलमान बनो तो ऐसे बनो कि जिस गली से निकल जाओ महकती हुई गली नजर आए, वही कहे गुलामे नबी आ रहा है, वही कहे गुलामे मुस्तफा आ रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात वो जात है। हम जैसे लोग अपनी जबान से क्या लेंगे? बड़े बड़े सूफियाए कराम जब तक के वजू नहीं कर लेते थे तब तक के गौसे आजम का नाम जबान से नहीं लिया करते थे। बड़े बड़े उलमा का ये तरीका है, पहले वजू करते थे। और सबसे बड़ा तरीका तो उस मुजद्दिद का है जो बरेली में आराम फरमा रहा है। कभी आपने गौसे आजम का तज़किरा, कभी आपने गौसे आजम का नाम, कभी आपने गौसे आजम का शेर लिखा तो बावजू होकर शेर लिखा है, बावजू होकर नाम लिखा है। हमारा हाल ये हो गया है, हमें वजू का सलीका नहीं मालूम, हमें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, हम उलमा के करीब आने के लिए तैयार नहीं। गौसे आजम की महफिलें ऐसे ही नहीं सजा जाती हैं। गौसे आजम की महफिलें सजाने के लिए हम सबको पाक और साफ बनना पड़ेगा। अल्लाह हमारे जो नौजवानों के अंदर बीमारियां हैं, खुदा उन बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमारा नौजवान बड़ा खूबसूरत है लेकिन रात में शराब ले लेता है। हमारा नौजवान बड़ा अच्छा है लेकिन जुए के अड्डे पर नजर आ रहा है। हमारा नौजवान बड़ा अच्छा है लेकिन इसके हाथों में ताश के पत्ते नजर आ रहे हैं। जिस सर के ऊपर टोपी और इमामा होना चाहिए था उस सर के ऊपर दूसरों की पट्टियां नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। इस फैशन भरे जमाने में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। एक लड़का हमारे पास आया और देखिए उसका पेट यहाँ से फटा हुआ था, ये सब दिख रहा था। कहने लगा हजरत नमाज का तरीका मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा तुझे कपड़े पहनने का सलीका मालूम नहीं है तो नमाज का तरीका कैसे मालूम होगा? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि शरीयत में मर्द के लिए नाम
लेकर घुटने तक इतना छुपाना फर्ज है, वाजिब है, और इसका खोलना हराम है। तेरा घुटना पहले से खुला हुआ है, तू क्या सलीका सीखेगा? पहले सलीका सीख, फिर तरीका सीख। बहुत सारे लोग नमाज सिखाते घूम रहे हैं, आपने देखा होगा उनका, यहाँ गठरी, यहाँ गठरा, यहाँ पोर्टल, ये गाड़ी खड़ी, वहाँ भरी जा रही। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? कहा इनको नमाज नहीं आती, नमाज तरीका सिखाने के लिए। मैंने कहा सुन, नमाज से पहले इनको वजू नहीं आता है, गुस्ल नहीं आता है, पहले वजू और गुस्ल का तरीका सिखा, उसके बाद नमाज सिखाना। इसलिए कि नमाज निर्भर है वजू पर, वजू नमाज के लिए कुंजी है। तो ये पोटले वाले कुछ नहीं सिखाएंगे, ये दीनी इज्तिमा कुछ नहीं बताएंगे, ये दुनिया खरीद रहे हैं, दुनियादार है। अगर दीनदार बनना चाहते हो, औलियाए कामिलीन के दामन से जुड़े रहो, उलमा के दामन से जुड़े रहो। गौसे आजम के सदके में दुआ करता हूँ, मौला हम सबको मजहब अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पर कायम और दायम रखे। और आप दुनिया से जाते जाते जाए तो आप इस ईमान के साथ जाए। दुनिया वाले जाते हैं तो और कुछ लेकर जाते हैं, और ये बरेली के मानने वाले जब जाते हैं तो सारी दुनिया को ऐलान करते हुए जाते हैं, हम कब्र में जा रहे हैं मुस्कुराते हुए। पूछ लो क्यों? इसलिए कि हमारा रसूल आएगा, हमारा गौस आएगा, हमारा खाजा आएगा। आज हमें सबकी ज़ियारत होगी। रोएगा वो जो शैतान को देगा, मुस्कुराएगा वो जो अल्लाह के वलियों को देखेगा। हमारा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।